Praise the Lord. Hallelujah. ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে আজি পবিত্ৰ বিশ্ৰাম দিন হয় আৰু আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপিছোঁ এই পবিত্ৰ দিনটো পালন কৰিবৰ কাৰণে। ঈশ্বৰে আমাক সুন্দৰ সময় আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে যিমান ধন্যবাদ দিলেও ঈশ্বৰৰ কাৰণে কমতি হয়, কিয়নো এতিয়া আমাক দিনে ৰাতিয়ে সদায় আমাক তেওঁৰ দেউকাৰ তলত আমাক ঢাকি ৰাখে আৰু তেওঁৰ পদত আমাক চলোৱাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক মই লাখ লাখ কোটি কোটি বাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। ঈশ্বৰৰ বাক্যটো এটা পঢ়ি পেলাই আমি আজি ছাৰ্ভিচটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। গীতমালা Psalms 91:1-2। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरे परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। प्रभु यीशु बाइकों पर आशीर्वाद हो। आप प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा, आपनाक धन्यवाद 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 दिছোঁ। कोटि कोटि बार आपनार चरणत परि पेলাই आपनाक प्रणिपात কৰিছোঁ। प्रभु আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে আজি গোটেই ৰাতিটো আপুনি আমাক নিৰাপত্তাকে চলাই নতুন দিন নতুন জীৱন দিছে যে আপোনাৰ ওচৰত চাপিবৰ কাৰণে আপোনাক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰণিপাত ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে সুন্দৰ আপুনি আমাক সময় আৰু অনুগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, আমি আপোনাৰ পবিত্ৰ নামটো লোৱা যোগ্য নহয়, কিয়নো আমি অহুচি সুত থকা মানুহ, অনাত্মক ভাৱনা অনাত্মক চিন্তা অনাত্মক কাৰ্য কৰোঁ আৰু আমি পাপতে লিপ্ত হৈ পেলাই পাপত পৰিপূৰ্ণ হৈছোঁ। পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, আপোনাৰ এটোপা তেজ কালভাৰীত বোৱা তেজেদি মোৰ ভাৱ আৰু ইয়াত পঢ়ি থকা প্ৰত্যেকজনৰ ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক। যিমান চবে অনলাইনৰ যোগেদি এই বাক্য পিতা এই ছাৰ্ভিচত তেওঁলোকে উপস্থিত আছে প্ৰভু, আৰু যিমান চবে চাইছে প্ৰত্যেকৰ ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰা। যিমান অহুচি আত্মা আমাক ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা গীৰ্জা ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে নিদিয়া বাধা দিয়া আত্মা চব মই প্ৰভু যীশুৰ নামত মই আদেশ দিছোঁ, প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই দূৰ হৈ যা। পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, আপুনি আহক আৰু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক। সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, যে আপোনাৰ চৰণত আমি যে দিনে ৰাতি সেৱা কৰিবৰ কাৰণে পাৰিম, আপুনি আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে পিতা পৰমেশ্বৰ আপুনি ব্লেছিং কৰি দিয়ক, যে আজি এই পবিত্ৰ দিনত যি সন্তানে আপোনাৰ বাক্য লৈ পেলাই আহিব তেওঁৰ মুখত আপুনি থ'ব, আপুনি তেওঁৰ মুখৰ যোগেদি আপুনি আচৰিত জীৱন জল বাক্য আমাক বুজিবৰ কাৰণে দিব, আপুনি তেওঁলোকক ক'বৰ কাৰণে সমৰ্থ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক। সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ ধন্যবাদ দিছোঁ, আশীৰ্বাদ আৰু অনুগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে লোক প্ৰভু পৰমেশ্বৰ এই ছাৰ্ভিচটো মই প্ৰথমৰ পালে পেলাই লাষ্টলৈকে আপোনাৰ হাতত সদাই দিছোঁ। প্ৰাৰ্থনা নাজাৰেথ প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ, আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। সময় নষ্ট নকৰি পেলাই আমি ঈশ্বৰ দাসক আমি এইটো ছাৰ্ভিচটো সদাই দিছোঁ, তেওঁৰ যোগেদি আমি জীৱন জলবায়ু। থেংক ইউ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি সুন্দৰ সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে, আৰু বিশেষকৈ পবিত্ৰ বিশ্ৰামবাৰ, আৰু আমি পবিত্ৰ বিশ্ৰামবাৰে ঈশ্বৰৰ महिमा কৰিবৰ কাৰণে সময় পাইছোঁ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें फिर से ये सुंदर अवसर दिया कि हम लोग एक साथ मिलके परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। और आज हम लोग फिर से प्रभु का वचन, प्रभु का जो मुंह से निकला हुआ जो वचन हम लोग एक बार फिर से उसको ध्यान करने के लिए मौका दिया। जितने भी भाई लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक लाइव के द्वारा, यूट्यूब लाइव के द्वारा, मैं उन लोगों को स्वागत करता हूँ। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, और ये दिन जो आज आपने प्रभु का नाम में दिए हैं, इस समय आपको प्रभु इस समय का ऊपर आशीष दे, और आपका परिवार को भी प्रभु आशीष दे। मैं समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हुए आज का जो
वचन है मैं उसको बोलने के लिए मैं आग्रह प्रकाश करता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। आज समय बहुत कम है आमार, সেইকাৰণে বেছি সময় আমি ব্যয় নকৰি ঈশ্বৰৰ বাক্য আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম। আৰু আজি আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য লৈছোঁ গীতমালা 27 নম্বৰ আৰু 14 পদ। Today's scripture portion has taken from Psalm number 27 and verse 14. And today we are going to meditate on this verse, what the Bible says about waiting for the Lord. परमेश्वर हमें यहोवा को बात जोहना, इस यहोवा को वेट करना, उसके बारे में क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन आज हम लोग उसी का ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर का उपस्थिति से आप लोग को प्रभु भरे, और विश्वास करता हूँ कि इस वचन आप लोगों को बहुत ही ज्ञानदायक, बहुत ही लाभवान होगा, आपको बहुत ही उपकार करेगा। प्रभु ये वाक्यर जोगेदी आप लोगों को बहुत परिमाणे आशीर्वाद करिब। So let me read from my NIV Bible. The Bible says, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. অসমীয়া বাইবেলৰ গীতমালা 27 নম্বৰৰ 14 পদত কৈছে, তুমি জিহুৱালৈ অপেক্ষা কৰা, হাহিয়াল হোৱা, আৰু তোমাৰ অন্তঃকৰণ সবল হওক। পুনৰাই কওঁ, जिह्वाলৈ अपेक्षा करा। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने आशीष किया और इस वचन का ऊपर आप मनन करने के लिए हमें जो बल्कि वहाँ लिखा है यहोवा का बात जोहना, मतलब परमेश्वर के लिए वेट करना। मैं हिंदी बाइबल से भी आपके लिए थोड़ा पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि सब हम लोग को समझने के लिए आसान होगा। यहोवा को बात जोहना, यहोवा की बात जोहता रह, हियाबान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बात जोहता रहे। वेटिंग फॉर द लॉर्ड, वेटिंग ऑन गॉड। इट्स वेरी easy to say, yes, I am waiting on the Lord, I am waiting. But is it true that we are waiting for God? We are waiting on God. हम लोग क्या परमेश्वर के लिए बात जोहते रहते हैं? क्या हम लोग परमेश्वर का जो समय के लिए परमेश्वर कुछ करेगा, बल्कि परमेश्वर मेरा जीवन में कुछ करेगा, आशीष देगा, या उनका समय में मुझे देगा, क्या हम उसके लिए वेट करते हैं या हम लोग नहीं करते हैं? बहुत सा विश्वासी को जब हम लोग पूछते हैं या हम लोग उसमें उन लोगों को विचार को जब जानने के लिए कोशिश करते हैं तो बोलते हैं, यस, आई एम वेटिंग फॉर द लॉर्ड 100%। मैं परमेश्वर के लिए रुका हूं, मैं परमेश्वर के लिए मैं वेट कर रहा हूं। बहुते कय বিশ্বাসী সকল 100% মই তো ঈশ্বৰৰ লগতেই আছো, তেওঁৰ কাৰণে বাট চাই আছো, তেওঁৰ আচৰিত কৰ্মত মই বাট চাই আছো। কিন্তু প্ৰকৃততে ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰা, ঈশ্বৰলৈ বাট চোৱা, তাৰ অৰ্থটো কি? ঈশ্বৰলৈ বাট চোৱা তাৰ অৰ্থটো যদি আমি জানিবৰ কাৰণে বিচাৰো, তেতিয়া আমি বাইবেলত আমি কিছুমান কথা বাইবেলৰ পৰা আমি গম পাম যে ইয়াতে আপুনি আৰু আমি অপেক্ষা কৰি আছো। We have been waiting on the Lord for a long time, but without any result. We are becoming weary and worn out. আমি বহুত কি হৈছো, আমি দুখী হৈ গৈছো, ভাগৰি গৈছো, কিন্তু ঈশ্বৰলৈ বাট চাই আছো। ঈশ্বৰলৈ বাট চোৱাটো এনেকুৱা নহয় যে ডক্টৰসকলক ডক্টৰক লগ কৰিবৰ কাৰণে গৈছো, বহুত দীঘল লাইন আছে আৰু মোৰ সময়ৰ কাৰণে মই বাট চাই আছো। ঈশ্বৰলৈ ৱেইট কৰা, ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰা মানে এইটো নহয় যে মই কিবা কোৰিয়াৰ এটা এমাজনৰ পৰা কিবা মই এইটো অৰ্ডাৰ দিছো আৰু আহিব, আজি অহা নাই, কালি আহিব, কালি অহা নাই, পৰহি আহিব, বা অলপ দিনৰ পিছত আহিব। Waiting on the Lord, it does not mean like they were waiting for in a queue or waiting for my turn for doctor's consultation. एनुका নহয়, ये नहीं होता कि हम लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। Waiting for the Lord
बहुत अलग होता है। कभी कभी हम लोग जब गैस के लिए, पहले कभी कभी गैस हम लोग का जो स्कैर्सिटी होता था, गैस के लिए बहुत सा आदमी लोग क्या करता है, वेट करता है अपना टर्न आने के लिए, लाइन पे खड़ा रहता है। तो हमारा टर्न आने तक 3 घंटा 4 घंटा हमें जो हमारा क्यू में हम लोग रुका रहना पड़ता था, वेटिंग करके करके करके। जब हमें अपना गैस को मिला, हम लोग उसको उठाते हुए घर तक पहुंचाया और हम लोग पूरा मतलब थक चुका है, हम लोग थक गया है, ऐसा हुआ है। तो ऐसा वेटिंग करना नहीं है। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि वेटिंग फॉर द लॉर्ड, इफ यू आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड दैट इट यू वोंट बी वेरियन आउट। आप उसमें लिए थकावट से आप भरेंगे नहीं। आप एक वचन को देखिए, आइज़ाया चैप्टर 40 एंड वर्सेस 30 to 31। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्सेस 30 to 31। क्या लिखा है इस वचन में, एक बार हम लोग पढ़ेंगे। NIV बाइबल में लिखा है, Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. अगर आप परमेश्वर के लिए बात जोहता है, अभी तक आप परमेश्वर के लिए वेट कर रहे, आप थकेंगे नहीं। बाइबल कह रही है यहाँ, इवन यूथ्स ग्रो टायर्ड एंड वेरी। यंग लड़का, जवान लड़का या लड़की, वो लोग भी थक जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड यंग मैन स्टम्बल एंड फॉल, वो कभी कभी झुटला के गिर भी जाते हैं। केतियाबा देखा लड़ा ছোৱালী বিলাক भागोर पाए, देखा বুলি ক'লে यंग, बुढ़ा बयसियाल নহয়, সৰু ল'ৰা নহয়, ডেকা ইয়ং, যাৰ ভিগাৰ আছে, এনেকুৱা ল'ৰা বা ছোৱালীও কেতিয়াবা ভাগৰ পায়, দৌৰি বা কাম কৰি বা পৰিশ্ৰম কৰি। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে উজুতি খাই বাগৰিও পৰে। কিন্তু বাইবেলে কি কৈ আছে, but those who hope in the Lord will renew their strength। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे कि जो उनके लिए बात जोता है उसका स्ट्रेंथ रिन्यू होगा। रिन्यू, वो नवीकरण होगा, रिन्यू होगा, उनका शक्ति रिन्यू होगा, उसका जो विगर है रिन्यू होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बात जोड़ रहे। आज बहुत सा व्यक्ति लोग को हम लोग जब पूछते हैं, उसको जब हम लोग इसका बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आप परमेश्वर का साथ कैसे जोड़े हो, या आप परमेश्वर से आप कैसे उसका रिलेशन साथ आपका कैसे है, तो उस बोल लेते हैं मैं बहुत ठीक हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, या मैं प्रार्थना करती हूँ, या मैं जो उसका हर एक वचन को मानने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसका सब कुछ मान रहा हूँ। लेकिन देखिएगा वो थका हुआ है, वो थका हुआ है। किस लिए? परमेश्वर कहता है कि जो मेरे लिए वेट करेगा वो कभी थकेगा नहीं। लेकिन वो थका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो परमेश्वर के लिए बात जोड़ रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा सही समय में, तो उसमें कुछ उसका कमी है। वो उसका बात जो होना, उसका वेटिंग करना, उसमें क्या है, कुछ कमी है। क्योंकि बाइबल कह रही है, but those who hope in the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagles। वो ईगल की नाई क्या करेगा, वो उड़ेगा बहुत ही ऊपर। सिल जैसे ईगल होता है वैसे वो बहुत ही ऊपर उड़ेगा, अपना पंख का ऊपर वो उड़ के जाएगा। परमेश्वर उसको आशीष करेगा कि वो जो आदमी परमेश्वर के लिए बात जोड़ रहा है, परमेश्वर के लिए वेट कर रहा है, तो उसका रिन्यू होगा शक्ति। वो जवान लड़का का जैसा होगा, चाहे उसका शरीर उसका साथ ना दे, उसका बुढ़ापा आ जाए, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, ही इज ए स्ट्रॉन्ग एनफ पर्सन टू प्रे, टू वॉक, टू प्रीच द गॉस्पेल, टू सो द सीड इन दिस वर्ल्ड। वो सही है, वो सकेगा, वो कर सकता है। किस लिए? वो परमेश्वर का लिए वेट कर रहा है, वेटिंग ऑन गॉड, परमेश्वर के लिए बात जोड़ना।
They will run and not grow weary. वो खूब स्पीड से भागेगा, तेज दौड़ेगा, लेकिन थकावट नहीं होगा. They will walk and not be faint. वो पैदल चलेगा, लेकिन वो मुरझा के नहीं गिरेगा. कितना सुंदर वचन प्रभु ने यहाँ हमें कहा है. जब मैंने इस वचन को पढ़ रहा था या स्टडी कर रहा था, मैंने इसका हिब्रू जो इसका मीनिंग हिब्रू वर्ड के लिए मैंने ढूंढा, क्योंकि जब हिब्रू वर्ड को आप समझेंगे तब उसका सही रीति जो उसका सही मीनिंग को आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का लिए वेट करने का मतलब क्या है. मैंने और भी एक जगह मैंने देखा है, इसमें मैंने दो पहलू देखा उसमें. वेटिंग फॉर द लॉर्ड, द मीनिंग ऑफ वेटिंग फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए वेट करना, परमेश्वर के लिए जो अपेक्षा करना, उसका बात जो होना का दो पहलू होता है. দুটা মুখ্য ভূমিকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঈশ্বৰৰ লৈ বাট চাওঁতা. প্ৰথম কথাটো হৈছে এ কমপ্লিট ডিপেন্ডেন্স অন গড. जब आप परमेश्वर के लिए वेट कर रहा है, यू हैव टू कंप्लीट डिपेंड अपॉन हिम. आप परमेश्वर के लिए कंप्लीट डिपेंड करना है, आप परमेश्वर का ऊपर ही डिपेंड करना है. दो पहलू होता है. परमेश्वर के लिए बात जो होने का मतलब है आप परमेश्वर का ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस, उसका ऊपर पूरा भरोसा करके आपको चलना है, उसका ऊपर पूरा डिपेंड करके चलना है कि नहीं मेरा परमेश्वर जो है मैं उसके ऊपर भरोसा रख सकता हूं. उसके लिए आप जब आप उसका लिए बात जो होते हैं उसके लिए वेट करते हैं, इसका मतलब है आप उसका ऊपर कंप्लीट भरोसा करते हो. नंबर 2, a willingness to allow him to decide the terms and including the timing of his plan. आप परमेश्वर को अलाउ करना है. दूसरा मीनिंग है जब परमेश्वर के लिए बात जा रहा है, दूसरा जो उसका मीनिंग है कि आप परमेश्वर को अलाउ कर रहा है, उसका प्लानिंग को, उसका टर्म्स एंड कंडीशन को आपका जीवन में अप्लाई करने के लिए. You are allowing God to apply his terms and condition in your life, because it is not you that it is not God that he is depending upon you, waiting upon you. It is you that you are waiting for God. ये परमेश्वर नहीं है कि आपके लिए आपका ऊपर आपसे बात जो रहा है, ये आप है कि परमेश्वर के लिए बात जो रहे हो. इसीलिए दो पहलू है. नंबर 1, आपको संपूर्ण रूप से परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखना, डिपेंड करना. और दूसरा है परमेश्वर का जो टर्म्स एंड कंडीशन. इसका मतलब है परमेश्वर का जो मैं ऐसे करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा लाइफ में ऐसा देना चाहता हूं, जो भी परमेश्वर देना चाहता है उसके आपको क्या करना है, उसको अलाउ करना है, आपको उसको मान लेना है. मैं दो एग्जाम्पल के साथ आपको ये दो पहलू को समझाना चाहता हूं. नंबर 1 जो मैंने था कंप्लीट डिपेंडेंस. कंप्लीट डिपेंडेंस का मतलब अभी मैं आपको बाइबल से दिखाना चाहता हूं. आप अगर दानियल चैप्टर आप देखिएगा, पहला है 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9. 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9 जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें आपको एक चीज को पता चलेगा. उसमें 2 कोरिन्थियन 12:9 ने पौल ने परमेश्वर का आगे, यीशु मसीह का आगे प्रार्थना कर रहा है. 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स आप देखिएगा 7 से लिखा है, to keep me from becoming conceited because of these surpassing great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. परमेश्वर का अधिक अनुग्रह, अधिक अपार अनुग्रह मेरा जीवन में आने के लिए और उसको उस ओवरफ्लो होने के लिए, वो बह के जाने के लिए परमेश्वर ने मेरा शरीर में एक कांटे चुगने के लिए छोड़ दिया है. मतलब पौल का जो कमर दर्द था या लोअर बैक पेन से वो बहुत ही तड़प रहा था. लोअर बैक पेन बहुत ही तकलीफ उसको होता था. लोअर बैक पेन का वजह से और परमेश्वर का आगे प्रार्थना किया. वर्स 8, 3 times I pleaded with Lord to take it away from me. 3 बार मैंने परमेश्वर के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु ये मेरे जीवन में से इसको हटा दीजिए, मेरा जीवन में से मुझे इस कमर दर्द से मुझे छुटकारा दीजिए. मैंने 3 बार प्रार्थना किया.
उसका दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसका बहुत ही मतलब वो समस्या है कि उसका प्रचार करने के जब समय में उसका कमर दर्द होता है और अच्छा से प्रचार नहीं कर पाता है, कभी कभी तो उसका तकलीफ होता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरा ये तकलीफ जो है आप उसको हटा दीजिए, मिटा दीजिए, ताकि मैं अच्छा से आपका वचन को बोल सकूं और भी पावरफुल होके। ईश्वरे কি কলে, মাই গ্ৰেছ ইজ সাফিচিয়েণ্ট ফৰ ইউ, মোৰ অনুগ্ৰহ তোমাৰ কাৰণে যথেষ্ট, মোৰ অনুগ্ৰহ তোমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। এইটো হৈছে কমপ্লিট ডিপেণ্ডেন্স অন গড, ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰা যে মোৰ এই কঁকালৰ বিষটো ঈশ্বৰ তুমি ভাল কৰি দিয়া, আৰু তুমি ভাল কৰি দিয়া বুলি যেতিয়া বিশ্বাস কৰিলে ঈশ্বৰে ক'লে নহয় মোৰ অনুগ্ৰহ তোমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। এইটো হৈছে কমপ্লিট ডিপেণ্ডেন্স অন গড, ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰা। 2 নম্বৰ আমি দেখিবলৈ পালো টু এলাউ হিম, मतलब ঈশ্বৰক, to allow God to apply, to imply, to give the terms and conditions in your life. তেওঁৰ যিটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন বা যিবিলাক আছে এইটো আমাৰ জীৱনত আহি এইটো তেওঁ যেন পূৰা কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ঈশ্বৰক অনুমতি দিব লাগিব। এইটোৰ কাৰণে যেতিয়া মই বাইবেলৰ পঢ়িলোঁ, মই বাইবেলৰ এইটো শিক্ষাটো লৈ চালোঁ কোনটো জেগাত এইটো বিষয়ে মিলা আছে, তেতিয়া মই দানিয়েল 6 অধ্যায় 10 পদৰ পৰা 23 পদ মই তাতে পালোঁ। जब मैं परमेश्वर का टर्म्स एंड कंडीशन को मेरा लाइफ में अप्लाई होने दो, या उसका जो भी इच्छा है मेरा जीवन में पूरा होने दो, इसके लिए मैंने जब बाइबल को खंगारा तब मैंने मेरा नजर आया दानियल चैप्टर 6 में वर्सेस 10 टू आप 23 में आप देखिएगा, उसमें मैं थोड़ा 1-2 वचन को आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसमें क्या लिखा है, 10 to 23। Now when Daniel इसमें डेनियल ने इसमें जब राजा ने हुक्म दिया कि दारियस राजा ने कि अभी 30 दिन तक कोई भी किसी को भी सेवा नहीं करेगा, और जो कोई दूसरा जो परमेश्वर को सेवा करेगा उसको लायन का देन में, उसका क्या करना है, उसको लायन का देन में फेंकना है। और दानियल इस वचन को जाना, देखिए वर्स 10 में लिखा है, नाउ व्हेन दानियल लर्न्ड दैट द डिक्री हैड बीन पब्लिश्ड, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. लेकिन ये सब राजा का हुक्म को जानते हुए भी दानियल ने अपना घर का पहला मंजिल में चला गया और जेरूशलेम मंदिर के लिए जो खिड़की था उसको, विंडो को खोला और परमेश्वर का आगे 3 बार प्रार्थना किया, ये जानते हुए भी कि मैं अगर इस समय राजा का हुक्म का पालन नहीं करता हूं तो राजा मुझे लेके लायन का देन अर्थात जो शेर का गुफा में मुझे फेंकेगा, वो जानते हुए भी उसने परमेश्वर के लिए आगे प्रार्थना किया, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर जो इच्छा मेरा जीवन में पूरा होने देगा, लेट दाई विल बी डन इन माई लाइफ, उसका इच्छा मेरा जीवन में पूरा होने दो। इसीलिए उसने प्रार्थना किया, और ये खबर जब राजा का पास गया तो राजा ने बहुत कोशिश किया दानियल को बचाने के लिए, लेकिन जो पर्शियंस एंड मीडियंस लॉ है उसका मतलब किसी का जब एक आदमी जो लॉ को पास करता है, राजा ये जो लॉ को पास करता है और जब उसका सिग्नेट रिंग उसका उंगली में लगाने हुआ जो अंगूठी से उसको स्टाम्प मार देता है, तो ये राजा उसका गला काटने से भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। इसलिए उसने जाके दानियल को गुफा में, लायन का गुफा में फेंक दिया, शेर का गुफा में फेंक दिया। लेकिन फिर भी दानियल ने कुछ भी नहीं कहा, दानियल को परमेश्वर ने बचा लिया। ये पहला एग्जाम्पल मैंने देखा। दूसरा एग्जाम्पल अब दानियल चैप्टर 3 वर्सेस 16 to 18 पढ़ने से आपका विश्वास और भी बढ़ेगा और आप हमेशा इस वचन को बोलने के लिए तैयार रहना है। You have to be ready to say to Satan these verses when Satan is trying to tempt you, when Satan is trying to distract you, then you have to say these verses.
कभी शैतान आपको आके बोल सकता है। उस दिन मैंने एक व्यक्ति को बोला है, एक व्यक्ति ने मुझे हम लोग को बोला है कि उसका थोड़ा जमीन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसने बोला हम लोग फेंगशुई करता है, वास्तुशास्त्र, फेंगशुई। अच्छा, तो फेंगशुई क्या है कि नहीं, आपको उत्तर दिशा में ये होना है, दक्षिण दिशा में ये होना है, पूर्व दिशा में आपका घर का दरवाजा इधर होना है, पश्चिम दिशा में आपका लेट्रिन होना है। ये उसको फेंगशुई वो लोग सिखाता है और आदमी लोग उसको मानता है। दिस इज ए वर्ल्डली थिंग्स, ये दुनिया का दारी का चीज है। आपका घर का दरवाजा आप इस तरफ बनाओ, आपका जो आपका प्रेयर रूम आप इस तरफ बनाओ, आप लेट्रिन इस तरफ बनाओ, आप जो भी किचन इस तरफ बनाओ, ये दुनियादारी का चीज है। दुनिया गोल है, आप जिस तरफ आपका सुविधा होता है आप उस तरफ बना सकता है। लेकिन फेंगशुई जो होता है, वास्तुशास्त्र, तो क्या करता है, उसको दिशा बताता है। इसलिए कोई कोई आदमी उसको मानने के समय अपना घर का इस दरवाजा तोड़ के उस धार लगा देता है, इधर का जो वाल को उसको तोड़ के इधर बना देता है। तो इसका ऐसे करते रहते हैं। उस समय उस व्यक्ति का लड़का ने बोला नहीं, आप लोगों भी, सिर्फ हम लोग नहीं, आप लोगों भी अगर मानते हो कि आपका जो ये गलत हो रहा है, आप ऐसे करना है, ऐसे करना है। तब उस समय मेरा दिल में कुछ नहीं आया, मैं उसमें मतलब उसका बात को ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इस शिक्षा को बना रहा था, वेटिंग ऑन द लॉर्ड, वेटिंग ऑन गॉड, जब इस वचन को बता रहा था तो परमेश्वर ने मुझे नजर को घुमाया। और तुम देखो दानियल चैप्टर 3 वर्स 16 to 18 में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सद्रक, मेशक एंड अबेदनगो रिप्लाई टू द किंग। सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को बोला, ओ नबूकदनेस्सर, we do not need to defend ourselves before you in this matter। इस विषय के लेके हम अपने आप को आपका आगे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। No need to say anything in front of you। We don't want to clarify। आपको हमें उसको बताने का जरूरत नहीं समझता। If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O King। अगर आप हमें इस जलती हुई धधकती हुई आग में फेंक देते हो, हमारा परमेश्वर हमें उस आग से बचा सकता है, आपका हाथ से बचा सकता है। ये हमारा विश्वास है। ये कौन कह रहा है? ये दानियल का 3 दोस्त, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 राजा जो नेबूकदनेस्सर का आगे और पावरफुल राजा का आगे बता रहा है। वर्स 18 को देखिए, ये बहुत बड़ा इसमें विश्वास है। आपका भी विश्वास ऐसा होना पड़ेगा, आपका भी फेथ ऐसा होना पड़ेगा। कोई आके आपका इसमें पिस्तौल लगाया, आपको बोलेगा क्रिश्चियनिटी छोड़ दे नहीं तो मार दूंगा, तो उस समय आप शैतान को ये बात बोलना है, मेरा परमेश्वर तुम्हारा हाथ से मुझे बचा सकता है। He is able to save me from your hand। लेकिन वर्स 18 में बोला है, but even he does not, we want you to know। अगर वो नहीं भी बचाता है, अगर परमेश्वर हमें तुम्हारा हाथ से नहीं भी बचाता है, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up। हम लोग तुम्हारा जो भी वर्शिप करने वाला, जो भी देवी देवता का जो मूर्ति बनाया है, उसको मैं कभी भी वर्शिप नहीं करूंगा। नो। इसीलिए शैतान को आपको हमेशा बोलना है कि शैतान, मेरा परमेश्वर मेरा इस स्थिति से मुझे बचाने के लिए समर्थ है। He is capable, वो सकता है। अगर नहीं भी बचाता है फिर भी मैं तुम्हारा आगे कभी नहीं झुकूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुम्हारा आगे झुकूंगा नहीं। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ वेटिंग ऑन गॉड। यही है सच्चा अर्थ है परमेश्वर के लिए वेट करना, परमेश्वर के लिए बात जोहना। इसीलिए मैंने जब हिब्रू वर्ड को ढूंढा, हिब्रू वर्ड में मैंने देखा क्वाओ वाओ बोलता है। क्वाओ वाओ, जो आप अभी बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, क्वाओ वाओ का मीनिंग हो गया कि टुगेदर, बाइंड टुगेदर, कलेक्ट टुगेदर, एक साथ उसको क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है और उसको आपको वेट करना है। क्वाओ वाओ का मीनिंग हो गया वेट करना, अपेक्षा करना, जिसका मीनिंग है बाइंड टुगेदर, एक दूसरे के साथ बंधन में रहना। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको मैं अभी आपको नहीं दिखा सक रहा, लेकिन एक हम लोग जो ये बाइंडिंग वायर या कोई हम लोग कभी इलेक्ट्रिक के काम करता है
या कोई किसी चीज को बांधने के लिए हम लोग जो बाइंडिंग वायर को लेते हैं যেতিয়া আমি বান্ধিবৰ কাৰণে কিবা তাঁৰ লওঁ দুডাল তাঁৰ যেতিয়া আমি লওঁ দুডাল তাঁৰ অকলে অকলে আমি দেখো যে এটো শক্তি কম হ'ব ইয়াৰ এটো অকল টানে দি নোৱাৰিব হেকাৰণে আমি কি কৰো দুডাল তাঁৰক আমি কি কৰো আমি একেলগে ভাইন টুইষ্ট কৰি দিওঁ একেলগে মিলাই দিওঁ দুডাল তাঁৰক যেতিয়া আমি একেলগে মিলাই দিওঁ তেতিয়া আমি কি আমাৰ মনত কি আহে যে এটো অলপ মজবুত হ'ল এটো কাটিবৰ কাৰণে অসুবিধা Wow, jitu Hebrew অর্থ তার অর্থ রয়েছে বাইন্ডিং টুগেদার টুইস্টিং টুগেদার একেলগে তাক কি কৰি দিয়া মিলাই দিয়া তাক কোৱা হৈছে কোৱাও অৰ্থাৎ তাক আমি মিলাই দিব কাৰণে কৈছে আৰু সেই কাৰণে আপুনি জিতু আমি বাক্য আমি পঢ়ি আইলো সাম নাম্বাৰ 27 ভাৰ্স 14 ত লিখা আছে 27 ভাৰ্স 14 ত লিখা আছে যে ওয়েট ফৰ দা লৰ্ড ঈশ্বৰৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা বি ষ্ট্ৰং এণ্ড টেক হাৰ্ট এণ্ড ৱেইট ফৰ দ্য লৰ্ড শক্তিশালী হোৱা আৰু বিশ্বাস কৰা আৰু লগতে ঈশ্বৰৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা इसलिए आप इसमें देखिए यहोवा की बात जो होता रहे हियाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे हियाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे हाँ यहोवा की ही बात जो होता रहे वेट फॉर द लॉर्ड दो एक ही वचन में एक ही जो वचन में दो बार लिखा गया है वेट फॉर द लॉर्ड और लास्ट में फिर से बोला है वेट फॉर द लॉर्ड तुम परमेश्वर के लिए वेट करो परमेश्वर का वेट करना ये बात नहीं है कि परमेश्वर के लिए मैं वेट कर रहा हूं इसलिए आप एक कोने में जाके बैठा रहता है आप एक कोने में जाके आप ध्यान करता है प्रार्थना करता है ऐसा बात नहीं है आप जब वेट कर रहे हैं आप परमेश्वर के साथ बाइंड टुगेदर आप परमेश्वर के साथ एक साथ जो आप उसको बाइंड करना है परमेश्वर से आप क्या करना है उसका साथ आप एकदम मिल जाना है वो एक साथ ट्विस्ट करना है आप जिसको बोला जाता है जितु को है इतु मिलाई दिया ईश्वर লগত আপনি টুইস্ট কৰা এটো একেলগে দুটা বান্ধি দিয়া নিচিনা হেতু হৈছে ঈশ্বৰে আমাক বিচাৰিছে আৰু সেই কাৰণে যোহন 15 অধ্যায় 5 পদত যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক এটো বাইন্ড কৰিবৰ কাৰণে আমাক ঈশ্বৰৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে তেওঁ কৈ গৈছে যোহন 15 অধ্যায় 5 পদত কৈছে আই এম দা ভাইন ইউ আর দা ব্রাঞ্চেস যীশু খ্ৰীষ্টই যোহন 15 অধ্যায় 5 পদত কৈ গৈছে আই এম দা ভাইন ইউ আর দা ব্রাঞ্চেস ইফ ইউ রিমেইন ইন মি and I in you will bear much fruit apart from me you can do nothing মোৰ লগত যদি লাগি থাকা তেতিয়ালে তোমালকে ফল আনিব পাৰিবা আৰু মোৰ লগত লাগি না থাকিলে তোমালকে একো কৰিব নোৱাৰা ইয়াৰ অৰ্থটো এটো গাখালতা ডালটো লাগি থাকাৰ অৰ্থটো হৈছে বাইন্ডিং টুগেদাৰ তাৰ লগত একেলগে মিলি থকা মিহলি হৈ থকা ঘলি মিলি যোৱা এটো টুইষ্ট হৈ যোৱা ঈশ্বৰৰ লগত মিলি যোৱা তাকে কোৱা হৈছে কওভও আৰু এইটোৱে অৰ্থটো বুজায় যে ওয়েট কৰা ঈশ্বৰলৈ বাট চোৱা হেতু হৈছে ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰা আৰু যীশু খ্ৰীষ্ট তাক আমাক কৈছে আপুনি যদি আৰু এবাৰ এটো জাকোবৰ পত্ৰ 4 অধ্যায় 8 পদ যদি পঢ়ে তাতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহা তাতে তেওঁ তোমালোকৰ ওচৰলৈ চাপিব draw near to God and he will draw near to you James chapter 4 verse 8 NIV Bible কৈছে come near to God and he will come near to you drawing near to God means you are longing to come you are longing to twist with God ঈশ্বৰৰ লগত আপুনি কি কৰিছে আপুনি বান্ধ খাব কাৰণে বিচাৰিছে ঈশ্বৰৰ লগত আহি পিনে আপুনি তেওঁৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে draw near to God ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহা তাতে তেওঁ তোমালোকৰ ওচৰলৈ চাপি আহিব ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহা তাতে তেওঁ তোমালোকৰ ওচৰলৈ চাপি আহিব ইয়াৰ অৰ্থটো এতে বুজাইছে যে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ অপেক্ষা কৰিছো ঈশ্বৰলৈ বাট চাইছো যিটোক আমাক এতিয়া বাইবেলত কোৱাইছে কোৱাও অৰ্থাৎ বাইন্ডিং টুগেদাৰ ৱেইটিং ফৰ গড ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰা তাৰ পিছত যদি আমি চাও 2 Corinthians 3:17 লিখা আছে where the spirit of the lord there is freedom যতে ঈশ্বৰৰ আত্মা আছে তাতে কি আছে আজাদি বা স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্ৰতা আছে যতে ঈশ্বৰৰ আত্মা আছে তাতে স্বতন্ত্ৰতা আছে when you will wait for the lord the Holy Spirit will come upon you and he will set you free যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহিব যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহত উপস্থিত থাকিব যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰলৈ বাট চাব যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ লগত আপুনি বান্ধ খাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ লগত আপুনি জড়িত হ'বৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিব
তেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক কি দিব ফ্ৰীডম অৰ্থাৎ আপোনাক কি দিব স্বাধীনতা আপোনাক মুক্তি হ'বলৈ দিব সকলো বন্ধনৰ পৰা আনবিলাক বন্ধনৰ পৰা যিবিলাক বন্ধনৰ যোগেদি আপোনাৰ জীৱনটো দুষ্ট আত্মাই পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে লৈ গৈ আছে বা দুষ্ট আত্মাই আপোনাৰ জীৱনটো নষ্ট কৰি আছে সেই সকলো বন্ধনৰ পৰা ঈশ্বৰে অতৰাই আপোনাক লৈ আনিব কেতিয়া যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰলৈ বাট চাব ঈশ্বৰৰ লগত বন্ধন হ'বলৈ আপুনি বিচাৰিব ঈশ্বৰৰ লগত আপুনি মিল হ'ব কাৰণে বিচাৰিব তেতিয়া ঈশ্বৰৰ আত্মাই আপোনাক কি কৰিব আপোনাক ফ্ৰীডম দিব আপোনাক মুকলি কৰি দিব এইটো আমি প্ৰথম পাচনি কৰ্ম এক্স চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্স আপুনি 4 যদি আপোনালোকে চাই তাতো ঈশ্বৰে আমাক প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক আজ্ঞা দিছে ঈশ্বৰৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এক্স চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্স 4 Do not leave Jerusalem but wait for the gift my father promised. Do not leave Jerusalem but wait. Apuni aru ami wait nakoru. There are many preachers in this world. There are many godly persons in this world. They never wait for the Lord. এই পৃথিৱীত বহুতো এনেকুৱা এতিয়া শিক্ষকবিলাক ওলাই গৈছে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে যেহেতু আজি আমি ফেসবুক লাইভ বা ইউটিউব লাইভ বা অনলাইনৰ যোগেদি আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো দি আছো কেলে এটো আমাৰ ঈশ্বৰে আমাক ৰেসপন্সিবিলিটি দিছে কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো দিবৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগে ওয়েট কৰিব লাগে ঈশ্বৰ মই অলপ আগতে কৈ আহিছো মই কমপ্লিট ডিপেন্ড ঈশ্বৰৰ ওপৰত কৰো নে মই চাকৰি বা ব্যৱসায় বা মোৰ স্বামী বা ভাৰ্যা বা মই আন বস্তুৰ ওপৰত বা আমাৰ যেটো বেলেগ বেলেগ কাৰ্যৰ ওপৰত মই ডিপেন্ড কৰো প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা আপুনি যে আজি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো দিবৰ কাৰণে গৈ আছে তে আমি অলপ আগতে কোৱা নিচিনা কৈ আপুনি ঈশ্বৰৰ দুখ বা ঈশ্বৰৰ পৰা অহা যেটো আশীৰ্বাদ বা ঈশ্বৰৰ পৰা অহা কেতিয়াবা যেটো এটো চেষ্টাইন বুলি কয় যেটো ঈশ্বৰে আপোনাক শিকাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে ঈশ্বৰে আপোনাক এটো কিবা জনাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে কেতিয়াবা ঈশ্বৰে শিকাবলগীয়াটো অলপ কষ্টও হয় কিন্তু আপুনি অনুমতি দিয়ে নে আপুনি কান্দে মোৰ জীৱনত কেলে এনেকুৱা হ'ল মই কেলে এনেকুৱা মোৰ জীৱনত কেলে এনেকুৱা হ'ল বুলি আপুনি কান্দে নে আপুনি ঈশ্বৰক অনুমতি কয় let thine will be done in my life তোমাৰ ইচ্ছা তোমাৰ জীৱনত সিদ্ধ হওক আপুনি হেতু কথা কয় ঈশ্বৰৰ ওচৰত আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে নে আপুনি প্ৰশ্ন কৰে যে প্ৰভু মোক কেলে এনেকুৱা হ'ল মোক কিয় এনেকৈ দুখ দিলা মই কেলে কষ্ট পালো আপুনি কান্দে যদি আপুনি এতিয়া হেই প্ৰবলেম বিলাকত আছে তেতিয়ালে আপুনি কেনেকৈ গৈ পিনে আন 10 জনক শিকাব আন 10 জনক আপুনি ক'ব কেলে আপুনি হেই ফ্ৰীডমটো পোৱা নাই যেতিয়ালৈকে আপুনি ফ্ৰীডম পোৱা নাই আজাদি পোৱা নাই বা আপুনি স্বাধীন বা স্বতন্ত্ৰ হোৱা নাই তেনেকৈ আনক আপুনি কেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰিব যে স্বতন্ত্ৰতা এইটো হয় আপুনি বন্ধনতে আছে আৰু সেই বন্ধনত থকা সময়ত আপুনি কেনেকৈ আনক মুক্তিৰ কথা ক'ব পাৰিব যিশয়া 61 চাও আইজায়া চেপ্টাৰ 61 ত যীশু খ্ৰীষ্টৰ যেতিয়া এই বাক্যটো পঢ়িছিলে তেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টৰ এই শাস্ত্ৰপাঠটো পঢ়া সময়ত সব মানুহে যীশুৰ ফালে চালে কেলে যীশুৱে ক'লে এই বাক্যটো এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে সিদ্ধ হ'ল কেলে যীশু খ্ৰীষ্টই আন সকলো বন্ধনৰ পৰা মুক্তি হৈ তেওঁ ঈশ্বৰৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি ৰাখিছিলে পৃথিৱীৰ একো লগত তেওঁ সম্পৰ্ক নাছিলে কেৱল ঈশ্বৰৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিলে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছিলে সেই কাৰণে যিশয়া 61 অধ্যায় 1 পৰা 3 পদ বা 4 পদ যেতিয়া তেওঁ পঢ়িলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে এই বাক্যটো তোমালোকৰ কাৰণে আজি সিদ্ধ হ'ল কেলে ঈশ্বৰৰ আত্মা মোৰ ওপৰত আছে বন্দিয়াৰ বিলাকৰ আগত মুক্তিৰ কথা ক'বৰ কাৰণে এই যি বাক্যটো তেওঁ ক'লে এই বাক্যটো মানুহৰ কাৰণে সিদ্ধ হ'ল কিয়নো তেওঁ সকলো বন্ধনৰ পৰা মুক্তি পাইছিলে থিংক আপুনি ভাবক যে মই ঈশ্বৰৰ কাৰণে ওয়েট কৰি আছো নে ঈশ্বৰে কোৱাৰ দৰে ডু নট লিভ জেৰুসালেম জেৰুসালেম এৰি নাযাবা বাট ৱেইট ফৰ দ্য গিফ্ট অপেক্ষা কৰা বৰদানৰ কাৰণে কোনে দিব মাই ফাদাৰ প্ৰমিছড মোৰ ঈশ্বৰে বা মোৰ পিতৃয়ে যেটো প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলে মোৰ পিতৃয়ে প্ৰতিজ্ঞা কৰা বৰদানসমূহ নোপোৱালৈকে জেৰুসালেম এৰি নাযাবা ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ মিনিং আছে ইয়াৰ বহুত অৰ্থ আছে
আৰু এই অৰ্থটো নজনাকে আমি বহুত কামবিলাক কৰি আছো, যাৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় নকৰি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাধাৰ সৃষ্টি কৰোঁ। বাইবেলত কৈছে অনেক শিক্ষক নহবা, অনেক শিক্ষক নহবা। তাৰ মানে কি, আজি যদি সবেই প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰৰ বাক্যটো কি হ'ব, আমি নজনাকৈ যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিম, তেতিয়া বেলেগ মানুহবিলাকে আমাক লোভ হল পাব, সুবিধা পাব, যিটোৰ যোগেদি আমাক প্ৰশ্ন কৰিব, আমি উত্তৰ দিব নোৱাৰিম। আৰু যিজন মানুহে ঈশ্বৰক সুধিব, ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰিব লগা আছে, তেওঁ আমাৰ কাৰ্যৰ যোগেদি, আমাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰা, আমাৰ আধা জ্ঞানৰ যোগেদি তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি যাব। আৰু এইটো এটা আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা হাওস্বৰূপ হ'ব। সাৱধান হ'ব লাগে, আমি বহুত সাৱধান হ'ব লাগে। এইকাৰণে ইয়াতে কৈছে ডু নট লিভ জেৰুচালেম, জেৰুচালেম এৰি নাযাবা। ইয়াতে কৈছে ৱেইট, ইয়াতো এটা ৱৰ্ড লিখা আছে ৱেইট। অলপ আগতে আমি গীতমালাত পঢ়ি আহিলো ৱেইট, ইয়াতো আমাক কৈছে ৱেইট। সেইটো ৱেইটৰ মিনিংটো মই বুজাই দিলো, কাউ ৱাও। আৰু এইটো ৱেইটৰ মিনিংটো হৈছে পেৰিমেনঅ। পেৰিমেনঅ দুটা গ্ৰীক শব্দ লগ লাগি পেৰিমেনঅ হৈছে। দুটা গ্ৰীক ৱৰ্ড লগ লাগি পেৰিমেনঅ অৰ্থটো হৈছে পেৰি, টু এবাইড, টু টেৰি। পেৰি মানে হৈছে এবাইড, লগত থকা, কণ্টিনিউ, টু বি প্ৰেজেণ্ট, টু লাষ্ট এণ্ড এণ্ডিঅৰ। সেইটো প্ৰেজেণ্ট হৈ থাকিবৰ কাৰণে, বহুত দিন তাক বহুত দিনলৈকে সেইটো চলিবৰ কাৰণে, লাষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে, এণ্ডিঅৰ সহ্য কৰিবৰ কাৰণে পেৰিমেনঅ দুটা শব্দ লগ লাগি, দুটা গ্ৰীক ৱৰ্ড লগ লাগি পিনে এইটো বুজাইছে পেৰিমেনঅ, যিটোক ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰা হৈছে ৱেইট। जब पेरीमेनओ ये वर्ड को जब ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, तो उसको डायरेक्ट बोला गया है वेट। लेकिन पेरीमेनो जब ग्रीक वर्ड है, वो दो वर्ड मिला के पेरीमेनओ हुआ है। पेरी का मतलब हो गया एबाइड, साथ में रहना, साथ में रहना, टू कंटिन्यू, टू बी प्रेजेंट, हाँ साथ प्रेजेंट रहना, उपस्थित रहना, लस्ट करना है, एकदम बहुत दिन चलना, एंड्योर सहन करना, धीर सहज करना। जैसे आप देखिएगा एबाइड विथ मी, एबाइड इन मी, जो जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 ने यीशु मसीह ने कहा है, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे जो भी हो, मेरे साथ तुम रहना। यीशु मसीह ने हमें कह रहा है एबाइड इन मी, মোৰ লগত লাগি থাকা। দুখ আহিলেও, কষ্ট আহিলেও, সমস্যা আহিলেও, প্ৰব্লেম আহিলেও, যি হ'লেও মোৰ লগতে লাগি থাকিবা। এইটো হৈছে পেৰি মেনিঅ। মেনিঅ মানে অৰ্থটো হৈছে ডুৱেল, মানে বাস কৰা। পেৰি শব্দটোৰ অৰ্থটো মই বুজালো। এতিয়া কৈছে মেনো মানে হৈছে ডুৱেল, মানে বাস কৰা, টু বি প্ৰেজেণ্ট, ৰিমেইন, ঈশ্বৰৰ লগতে লাগি থকা, ডুৱেল বাস কৰা। যিজনে সৰ্বশক্তিমানৰ ছাঁত বসতি কৰা, ডুৱেল, ঈশ্বৰৰ লগত বাস কৰা, ঈশ্বৰৰ লগত একেলগে থকা। গতিকে ৱেইটিং ফৰ গড, ইট মিনছ টু প্ৰেজেণ্ট, টু এণ্ডিঅৰ, টু ৱেইট, টু ডুৱেল ইন হিজ প্ৰেজেন্স, ইন উইথ গড, ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত থকা, ঈশ্বৰৰ লগত বাস কৰা। সেইকাৰণে বি প্ৰেজেণ্ট, এই প্ৰেজেণ্ট শব্দটো যেতিয়া বাইবেলত কোৱা হৈছে, প্ৰেজেণ্ট মানে উপস্থিত থকা, ঈশ্বৰৰ লগত বাট চোৱা, ঈশ্বৰৰ লগত ৱেইট কৰা, তেওঁৰ লগত বাসত একেলগে থকা, এই বাক্যই বুজাইছে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই বাক্যৰ পৰা গম পাইছে যে ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত আমি থাকিলে, ঈশ্বৰৰ লগত ৱেইট কৰিলে, ৱেইট কৰা মিনিংটো কি হয়। এতিয়া মই জলদি আপোনালোকক দ্য বেনিফিটছ অফ ৱেইটিং অন গড, परमेश्वर का साथ रहना व उसका वेट करना, परमेश्वर के लिए बात जो होना क्या है, मैं इस वचन के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जल्द द बेनिफिट्स, आपको क्या फायदा होगा। आप परमेश्वर के लिए जब वेट करते हैं, परमेश्वर का साथ जब आप बास करते हैं, परमेश्वर का साथ आप जब घुल मिल जाते हैं, आप परमेश्वर का साथ निवास करते हैं, तो आपको क्या फायदा होगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स of waiting on God? Genesis chapter 49 verse 18 and Psalm number 62 verse 1. If you wait on God, then God will give you salvation. आप परमेश्वर के लिए जब बात जोते हैं,
जब परमेश्वर के लिए आप वेट करते हैं तो परमेश्वर आपको क्या देगा? परित्राण, सेल्वेशन, मुक्ति। सेल्वेशन आपको परमेश्वर से ही मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई भी ताकत नहीं है आपको सेल्वेशन, परित्राण देने के लिए। এই পৃথিৱীত আপোনাৰ একো শক্তি নাই যে আপোনাক কি আছে পৰিত্ৰাণ দিব পাৰে। পৰিত্ৰাণ কেৱল ঈশ্বৰৰ পৰা আহে। সেইকাৰণে যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰলৈ বাট চায়, যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰে, তেতিয়া জিহুৱালৈ অপেক্ষা কৰাৰ অৰ্থ তাৰ যিটো লাভ হৈছে, তাৰ যিটো বেনিফিট হৈছে যে আপোনাক ঈশ্বৰে কি দিব? সেলভেশন। সেলভেশন দুটা অৰ্থত মই সদায় আপোনালোকক কওঁ। এটা হৈছে এই পৃথিৱীৰ ফালৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱা। অভাৱ বা সমস্যা বা বেমাৰ বা অশান্তি আপোনাৰ জীৱনত আছে, যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ আহিব, ঈশ্বৰৰ লগত চাপি যাব, তেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক এই পৃথিৱীৰ যিটো সমস্যাত আপুনি ভুগিছে, এই সমস্যাৰ পৰা ঈশ্বৰে আপোনাক কি কৰিব? মুক্তি দিব। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে, সেকেণ্ডটো হৈছে যেতিয়া আমি এই পৃথিৱীখন এৰি দিম, অৰ্থাৎ আমি ঈশ্বৰৰ লগত শুই যাম, যাক মৃত্যু হোৱা বুলি কয়। আমাৰ প্ৰাণ ঈশ্বৰৰ লগত গৈ বাস কৰিব সদায় দিনৰ কাৰণে, ফৰ ইটাৰনিটি, কেতিয়াও শেষ নোহোৱা জীৱন, তাকো পৰিত্ৰাণ বুলি কয়। সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ লগত থকা, ৱেইট কৰা বা অপেক্ষা কৰাৰ প্ৰথম লাভ বা বেনিফিটটো হৈছে ঈশ্বৰে আমাক কি দিব? পৰিত্ৰাণ দিব। Psalm number 104 verses 27 and 28, Psalm 145 verses 14-15 ত লিখা আছে, এটো মতে আপোনাক ঈশ্বৰে ডেইলি নেসেসিটিজ, আপোনাক সদায় প্ৰয়োজনীয় হোৱা যিটো প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক ঈশ্বৰে পুৰা কৰিব। লাইক God will supply your daily needs. Give us our daily bread. আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ঈশ্বৰ আমাক প্ৰয়োজনীয় আহাৰ আজি আমাক দিবা। কিন্তু গীতমালা 104, 27, 28 পদ যদি আপুনি পঢ়ে, তাত আপুনি পঢ়িবলৈ পাব, গীতমালা 145, 14, 15 পদ যদি পঢ়ে, তাত লিখা আছে আপুনি ঈশ্বৰলৈ যেতিয়া ৱেইট কৰে, ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক, ডেইলি নেসেসিটিজ, ডেইলি আপোনাক যিটো প্ৰয়োজন আছে তেওঁ আপোনাক যোগাব। परमेश्वर आपको तो हर एक दिन का, रोज का जो आपका जरूरतमंद सामान है आपको जुटाएगा from anywhere. You don't need to worry. When you waiting on God, God is there to supply your daily necessities. He is bound. He says that I will give you the daily necessities, because in the past days, those in the days of Israelites, when they were traveling through the desert, God supplied them. परमेश्वर ने इज़राइल लोग को जो मरुभूमि जब उसमें जो चल रहा था, उस समय परमेश्वर उसको जुटाया मन्ना देके। उसी तरह आप जब परमेश्वर के लिए वेट करता है, तब परमेश्वर आपको क्या देगा? डेली नीड्स को पूरा करेगा। Psalm 25 verses 4 and 5, Psalm 106 verse 13, He gives us instruction. जब आप परमेश्वर का वेट करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको चलाएगा, मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। मैं ये वचन को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है। गॉड गाइडेंस, बहुत सा भाई बहन हमें लिखता है या बोलता है गॉड गाइडेंस के लिए प्रार्थना कर देना। गॉड गाइडेंस आपको कब देगा? जब आप परमेश्वर के लिए वेट करेगा। मैं प्रार्थना में परमेश्वर के लिए वेट कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का जवाब के लिए वेट कर रहा हूं, परमेश्वर मेरा जीवन में काम करेगा बोल के मैं वेट कर रहा हूं। उसी जब आप करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा, ऐसे चलो, ऐसे करो। पुराना नियम में आप देखिएगा परमेश्वर अपना दासों लोगों को कैसे इंस्ट्रक्शन देके चला के लेके आया था। आप पूरा उसको देखिएगा कि परमेश्वर इंस्ट्रक्शन के द्वारा, इवन पीटर को भी परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि कास्ट your net on the right direction. तुम अपना जो जाल को सही दिशा में फेंको, सही दिशा में फेंको। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब पीटर को डायरेक्ट किया कि तुम्हारा नेट को, जाल को सही दिशा में फेंको, तो उन लोगों ने इतना मछली पकड़ा कि जाल जो फटने का जैसा हो गया, और जब नाव में सारा मछली को उठाया, नाव भी डूबने जैसा कगार पे पहुंच गया। इसका मतलब गॉड डायरेक्ट करता है। परमेश्वर आपको क्या करता है? राह दिखाता है। Psalm number 25 verse 21 and Psalm number 40 verse 1 to 3, He answers to prayer. परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देगा। जब आप परमेश्वर के लिए वेट करता है,
जब आप परमेश्वर के लिए आप उसका उपस्थिति में रहता है, जब आप परमेश्वर से पाने के लिए आप अपने उत्तर पाने के लिए आप प्रार्थना में रहते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो आपका प्रार्थना का उत्तर देता है। दानियेल ने प्रार्थना किया तो उसका विजन को, राजा ने कौन सा सपना देखा था, वो राजा का सपना पूरा एज इट इज जैसे था वैसे ही दानियेल को देखने दिया। जब दानियेल ने प्रार्थना किया 21 डेज बाधा आया था परमेश्वर का रिप्लाई आने के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर उत्तर दिया। इसलिए आप जब उसका उपस्थिति में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए वेट करते हैं, तो परमेश्वर आपका प्रार्थना को उत्तर देगा। Psalm 27 verse 14 और Psalm number 31 verse 24, he gives courage साहस देता है। ঈশ্বৰে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰোঁ, তেতিয়া অপেক্ষা কৰাৰ অন্তত আমি কি পাওঁ? সাহস পাওঁ। আমি সাহস পাওঁ। আমাক ঈশ্বৰে কি দিয়ে? সাহসী কৰি তোলে। সাহস যুঁজিবৰ কাৰণে নহয়, সাহস কাবাক মাৰপিট কৰিবৰ কাৰণে নহয়, সাহস ঈশ্বৰৰ বাক্য কবৰ কাৰণে, সাহস এই পৃথিৱীত শয়তানৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে। যিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম আহিলেও, যিমান ডাঙৰ সমস্যা আহিলেও আমি ঈশ্বৰৰ নামেৰে সেই সমস্যাটো পাৰ কৰি যাব পাৰিম, এইটো সাহস ঈশ্বৰে আমাক দিয়ে। আৰু তাৰ জীৱন্ত উদাহৰণ আমি হয়। মই আৰু মোৰ ৱাইফ ৰীনা, আমি যেতিয়া 2015 আমি ওলাই আহিলোঁ, সেইখিনি সময়ত আমাৰ হাতত জিৰ' বেলেঞ্চ। আমি এতিয়াও এইটো সাক্ষ্য দিওঁ, আমাৰ হাতত টকা পইচা একো নাছিলে। আমি ক'ত থাকিম, আমি তাৰ কাৰণেও আমাৰ চিন্তা। 45 ডেজ আমি লোকৰ ঘৰত, এজন ভাইৰ ঘৰত তেওঁ আমাক থাকিবৰ কাৰণে দিলে। 45 ডেজ তেওঁৰ ঘৰত থাকিলোঁ। আমাৰ চিন্তা, আমাৰ সকলো দুখবিলাক আমি সেইখিনি সময়ত কি কৰিম, কি ভাৱনা কৰিম, আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে। কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাটো নেৰিলোঁ, আমি ঈশ্বৰলৈ বাট চোৱাটো নেৰিলোঁ। আজি সেইকাৰণে এমেজিং গ্ৰেছ ফাউণ্ডেশ্যন আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে এমেজিং গ্ৰেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেদি আজি আমি ঈশ্বৰৰ কাৰ্য কৰিব পাৰিলোঁ। বহুতে সোধে, বহুতে কয়, প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁলোকে যদি ঈশ্বৰৰ মানুহ কেলে এনেকুৱা দুখ আহিলে। মই তেনেকুৱা মানুহৰ প্ৰশ্ন শুনিলে হাঁহি উঠে। ঈশ্বৰৰ মানুহৰ ওপৰতেতো দুখ আহিব, কাৰ ওপৰত দুখ আহিব? ঈশ্বৰৰ মানুহৰ ওপৰত টেম্পটেশ্যন আহিব, কাৰ ওপৰত টেম্পটেশ্যন আহিব? ঈশ্বৰৰ মানুহৰ ওপৰতেই প্ৰব্লেমটো আহিব, আৰু সেইটো সহ্য কৰি ওলাই যোৱাটোৱে হৈছে ঈশ্বৰৰ নামত জয়যুক্ত হোৱা। Psalm number 60 verse 12 লিখা আছে, we will get victory with God। ঈশ্বৰৰ লগতে আমি জয় হ'ব পাৰিম। সেইটো অৰ্থটো কি? জয় হ'বৰ কাৰণে যুদ্ধত যাবই লাগিব। যুদ্ধ নালাগে মোৰ কাৰণে, প্ৰব্লেম নালাগে মোৰ কাৰণে, সমস্যা নালাগে মোৰ কাৰণে, বদনাম নালাগে মোৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত নাই। যেতিয়া আপোনাৰ বদনাম হোৱা নাই, যেতিয়া আপুনি প্ৰব্লেমত পৰা নাই, যেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত টেম্পটেশ্যন অহা নাই, তেতিয়াহ'লে স্মুথ লাইফ যদি চলি আছে, ডেট মিনছ দেয়াৰ ইজ এ প্ৰব্লেম, দেয়াৰ ইজ এ প্ৰব্লেম ইন ইয়ৰ লাইফ। যদি আপুনি গম পাইছে যে মানুহে আপোনাক বেয়াকৈ কৈছে, মানুহে আপোনাক ভাল পোৱা নাই, আপোনাক বদনাম কৰিছে, কিবা প্ৰব্লেম আহিছে, গম পাওক ঈশ্বৰে আপোনাক চলাই আছে। ঈশ্বৰে আপোনাক চলাই আছে, ঈশ্বৰে আপোনাক ৰাস্তা দেখুৱাই আছে। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আপোনাক সাহস দিব। যিটো ডাঙৰ বিপদত আমি ঘৰৰ ছাদ নাইকিয়া হৈ যোৱা, আমি থাকিবৰ কাৰণে মাটি নাইকিয়া হৈ যোৱা, চলিবৰ কাৰণে পইচা নাইকিয়া হৈ যোৱা অৱস্থাত যেতিয়া আমি পাৰ হৈ আহিব পাৰিলোঁ, এতিয়া তাতকৈ ডাঙৰ সমস্যা আৰু নাই মই ভাৱনা কৰোঁ। তেনেকুৱা ডাঙৰ সমস্যা আহিলে আমি পাৰ কৰিব পাৰিম। That's why we are waiting on God। সেইকাৰণে আমি ঈশ্বৰলৈ বাট চাই আছোঁ। Praise the Lord। আজি আপোনালোকেও যিমানবিলাকে এই বাক্য শুনিছে, ঈশ্বৰলৈ বাট চাওক, ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰক। ঈশ্বৰে আপোনালোকক কি দিব? সাহস দিব। Psalm 33 verse 18 to 22, he gives protection and help। যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ বাট চাই, তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে আপোনাক কি দিব? সুৰক্ষা দিব আৰু সহায় দিব। ঈশ্বৰলৈ বাট চাওঁতাবিলাকক ঈশ্বৰে সুৰক্ষা দিব আৰু সহায় দিব। These are the benefits of waiting on God. If you wait on Him, if you're waiting for God, then God will give you protection and help. What do you want? Because God is giving all these things: salvation, daily necessities, instruction, answers to prayer, and He gives courage. Now He gives you protection and help. And in other way, you will get eternal life. Psalm number 37 verse 34, He will give eternal life. God is there. If you are waiting on Him, then God is there to give you eternal life, eternity. ईश्वर अब जब परमेश्वर के लिए आप वेट करेगा, तो परमेश्वर आपको क्या देगा? इटर्निटी।
हमेशा रहने वाला जीवन, जो जीवन इस जीवन में तकलीफ है। लाजर और धनी व्यक्ति का बारे में आप लोग बाइबल में सुना है। धनी व्यक्ति जो बहुत ही रुपया पैसा रहने वाला, भोग विलास में अपना जीवन को गंवाने वाला, वो खाना खा के कभी अच्छा नहीं लगता है तो फेंक देता है। कोई बोलता है क्या मीट बनाए तो फेंक देता है, मछली अच्छा नहीं लगा तो फेंक देता है। ऐसे फेंकने वाला सामान को खाने वाला था लाजर, जिसका पूरा शरीर में घाव 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 था। जो खाना को फेंकने, धनी व्यक्ति फेंकने वाला खाना को पकड़ने के लिए जाता है, कुत्ता लोग भी आता है और उस खाना के लिए उस कुत्ता का मुंह से छीन के वो क्या करता है, वो लाजर खाता था। लेकिन जब लाजर भी मर गया और जो धनी व्यक्ति भी मर गया, लाजर स्ट्रेटली कहां गया, जो अब्राहम का गोदी में जाके बैठ गया। और धनी व्यक्ति जो अपना भोग विलास में जो अपना समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति, नरक का आग में एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। इसलिए आप इस दुनिया में तकलीफ है, आपका प्रॉब्लम है आपका, लेकिन परमेश्वर के लिए बात जो ना आप नहीं छोड़ा है, इस दुनिया को परमेश्वर ने आपको पार करके देगा। लेकिन जो आने वाले दुनिया, जो मृत्यु का बाद जो जीवन है, वो जीवन में आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर आपको इटर्निटी देगा। वहां आपका दुख नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगा, आपका शरीर में घाव नहीं रहेगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां ना दुख होगा, ना सुख प्रॉब्लम होगा, ना बीमार होगा। वहां हमेशा शांति ही शांति बना रहेगा। परमेश्वर ऐसा इटर्नल लाइफ आपको देना चाहता है। Psalm 130 verses 5 and 6, In him we have hope, आशा। आज दुनिया में कोई भी आशा नहीं है। आशा नहीं रहने वाला व्यक्ति लोग को आप लोग देखते हैं सुसाइड कर रहे हैं, अपना जीवन को खत्म कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मार रहा है। आशा नहीं रहना व्यक्ति शराब पी रहा है, आशा नहीं रहने वाला व्यक्ति जुआ खेल रहा है, आशा नहीं रहने वाला व्यक्ति वो ड्रग्स खा रहा है। किस लिए? वो आशा नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर के लिए वेट कीजिए। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, बाइबल कहती है वो आपको आशा देगा। He will give you hope. In him we have hope. आपको क्या मिलेगा? आशा मिलेगा। इसलिए आप परमेश्वर के लिए क्या होगा? आप वेट कीजिए। आइज़िया चैप्टर 40 वर्स 31 में लिखा है, He renews our strength. उम्र होने का बावजूद भी आपका स्ट्रेंथ जो है, आपका ताकत जो है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आप हमेशा ताकतवर रहेगा। आप हमेशा परमेश्वर के लिए आप गुनानो कीर्तन कर पाएंगे। आपका परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सकेंगे, स्तुति कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या देगा? आपको स्ट्रेंथ देगा। आइज़िया चैप्टर 30 वर्स 18 में लिखा है, He will bless. परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइज़िया 49:23, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। बाइबल कहती है, He will not let them ashamed who wait for him. परमेश्वर के लिए बात जोने वाला व्यक्ति को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता है। ईश्वर बादशाह মানুহক ईश्वरे केতিয়া लाजत पड़िब निदिए। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद जे तुमी आमाक लाजत पड़िब दिया নাই। হয় ईश्वरे आपनाक केতিয়াও लाजत पड़िब निदिए। আপুনি ईश्वरले যেতিয়া बात চাব, ईश्वरे आपनाक केতিয়াও लाजत पड़िब निदिब। ईश्वरे आपनार लाजটো অতৰাই পিনে আপনার মুখখন উজ্জ্বল করে দিব। Praise the Lord. Lamentation chapter 3 verse 25, He is good to them who waits. যিবিলাকে তেওঁলৈ বাট চাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ঈশ্বৰ ভাল, মংগলময়, আশীৰ্বাদ দিওঁতা আৰু তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰোতা। Luke chapter 24 verses 49 and Acts chapter 1 verses 4 and 8, He gives Holy Spirit who waits for him. যিসকলে তেওঁলৈ বাট চাই তেওঁলোকক তেওঁ পবিত্ৰ আত্মা দান কৰে। पवित्र आत्मा তেওঁলোকক দান কৰে। आज আপোনালোকক মই कहूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से आप भर जाइए। आप परमेश्वर के लिए वेट कीजिए, अपेक्षा कीजिए, बात जो है आप बात जो होता रहिए। बाइबल कहती है कि आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा और आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। Let's stand together and let's pray. Let us say, Lord, today from onward I will wait on you. Then Lord bless me, give all benefits
गिव मी ऑल द बेनिफिट्स फॉर वेटिंग ऑन यू। आपके लिए जो मैंने जो वेट किया उसका पूरा आशीष बेनिफिट्स आप मुझे दे और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने सुंदर समय हमें दिया। आज का जो सुबह का समय आपने हमें सुंदर आपका वचन को आपका शेयर करने के लिए, आपका जो सुंदर जो मधु से भी मीठा जो वचन है प्रभु, इस वचन को शेयर करने के लिए आपने मुझे मौका दिया और जो इस वचन को समझने के लिए प्रभु आपने मौका दिया। हाँ कि यहोवा की बात जो होता रहे प्रभु, मैं आपका बात अगर कभी भी मेरा लाइफ में आपसे मैं कभी भी प्रभु दूर हुआ हूं, कभी भी प्रभु आपके ऊपर में मैं विश्वास में कमजोर हुआ हूं, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। और इस समय प्रभु जितना भी भाई बहन यहाँ उपस्थित है प्रभु, और जितना भी भाई बहन इस समय फेसबुक लाइव के द्वारा हमें देख रहा है प्रभु, आप सभी को इस समय आपका पवित्र लहू के द्वारा धो के आप उन्हें शुद्ध कीजिए। जो भी दुष्ट आत्मा है यीशु मसीह का नाम से मैं हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त निकल जा। हर एक भाई और बहन का जीवन में काम करने वाला, हर एक भाई बहन का जीवन में काम करने वाला दुष्ट आत्मा को मैं यीशु का नाम से हुक्म देता हूं। जितना परमेश्वर के लिए अपेक्षा करने नहीं देने वाला, यहोवा के लिए बात जोड़ने में बाधा देने वाला शैतान इन लोग का जीवन में से निकला, बीमार करने वाला, समस्या करने वाला, इन लोग को पवित्र आत्मा से भरने के लिए बाधा देने वाला दुष्ट आत्मा को मैं यीशु का नाम से हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त तू छोड़ दे। हर एक भाई हर एक बहन का जीवन में से तो निकल जा यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया ओ राबशाका बाबा 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 हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। इस समय आप लोग अपने हाथों को इस समय मेरे तरफ कीजिए और आप इस समय आशीष से भरेंगे, क्योंकि मेरे तरफ जो आप इस समय हाथों को फैला रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा आपके लिए पवित्र आत्मा इस समय आप लोगों को छुए, पवित्र आत्मा आप लोगों को छुए। मैं विश्वास करता हूं इस समय पवित्र आत्मा फ्लो हो रहा है। आप इससे मत सोचिए कि हम लोग अभी ऑनलाइन में हैं, फेसबुक के द्वारा यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा एक जो हवा है वो कहीं भी उपस्थित हो सकता है। इसलिए मेरा जो प्रार्थना परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर इस समय आप जहां भी है वहां आपके लिए पवित्र आत्मा भेज रहा है। फिल विद होली स्पिरिट, फिर भर दे पवित्र आत्मा से। प्रभु आपका आशीष आने दे, हर एक को ताकत दे, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु वो लोग आपके लिए प्रभु अवेट कर सके। प्रभु वो लोग आपके लिए बात जोते रहे। आप ऐसे आशीष करना पिता। प्रभु आपका संतान लोगों को मैं आपका हाथ में सौंप रहा हूं इस समय। उनको बीमार से आप छुटकारा देना, उनको समस्या से आप छुटकारा देना, उन लोग को कोई भी जितना भी प्रॉब्लम है दुनिया का हर एक से उसको छुटकारा देना। आप उसको आशीष दीजिए पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मेरा विनती को सुना, आपने मेरा प्रार्थना को सुना, आपने मेरा प्रभु आवाज को सुना। और मैं विश्वास करता हूं आपका जितना भी जो संतान लोग इस समय लाइव के द्वारा हमें देख रहा है, आप उन लोग का प्रार्थना का भी सुनेगा। उन लोग का जो आवाज जो अभी उन लोग निकाल के प्रार्थना कर रहे हैं उस आवाज को आप सुनेगा और आप उन लोग का आशीष कीजिएगा। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने सुंदर समय हमें दिया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आप को और हर एक भाई बहन को जो मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, चाहे कम हो चाहे बड़े हो, सबको मैं आपका पवित्र हाथ में सौंपते हुए बेनती प्रार्थना मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।